Okay, till date we have completed first part, that is product, what is project, what is product, end user, customers, clients, and waterfall model we have completed. Under this we have 5 phases. One is requirement, design, implementation, verification, or testing, you can say, testing and maintenance and deployment, right? So, and disadvantage of this waterfall model, and again we have gone through the V model where verification validation is very important part, and these are also called Q and QC and dynamic and testing and static testing. Okay, so once that is done, so we have gone through the this one agile process. Okay, agile process, we have complete cycle, we have seen agile scrum. Okay, agile is having many processes, that is DFD, XP, and what do you say, that is scrum, right? These are all what we have. Okay, uh, okay, so under uh, agile scrum we have 3 roles. One is product owner, scrum master, and dev team. Okay, so, and again we have 4 types of ceremonies, that is also called events or meetings. Okay, one is sprint planning meeting, daily stand-up meeting, or daily scrum meeting, sprint review meeting, and sprint retrospective meeting. So here how it works, this is like input will be given by the customers, teams, and managers and executives to the product owner, and product owner is the only one person, that is a point of contact to the complete team. Okay, product owner is going to prepare the product backlog, and he's going to prioritize the product backlog, or remove, or he can modify or add the features or the requirements. Okay, with the help of estimation process in a sprint planning meeting, dev team and product owner will decide the sprint backlog. Okay, once the sprint backlog is ready, then daily stand-up meeting happens on a daily basis at the fixed time for 15 minutes. Okay, so in that we will discuss what I've done yesterday, what I'm going to do today. Is there any impediments that will be mentioned in the daily scrum meeting? Okay, at the end of the sprint we'll do the sprint review meeting, where whatever the tasks were taken in the sprint backlog, that has to be given demo to the sprint product owner or client. Okay, and someone from the team will be given the demo. Okay, that is called completely potentially shippable product. Okay, once sprint review is done, the sprint retrospective meeting is done by the development team plus scrum master, where what went well, what went wrong, and how we can improve the process in the next sprint, that will be discussed. Okay, here product backlog is means a complete set of requirements for the project, that is product backlog. Okay, the complete accountability is of product owner. Okay, sprint backlog means the uh, chunk or a part of the product backlogs taken into the consideration to complete the tasks within the sprint or a fixed duration, that is called sprint backlog. So what is sprint here? Sprint is time duration where team is committed to achieve some specific goal within the time duration, that is called sprint. Okay, so sprint planning, under sprint planning meeting, the complete team will do the estimation process, that depends on the knowledge, effort, and time required for completing the task. Okay, here user story points will be assigned for the each user stories. Okay, that's all about agile scrum. So when it comes to user stories, uh, just a minute, today again my cursors are not working properly, so that is why I've written this way. Okay, user stories, you already heard about, that is a detailed description of requirement, how exactly it looks like. Okay, uh, okay, this is a user story for registration screen और user password creation. Okay, हमेशा आपका यूजर स्टोरी आपको ऐसे ही दिखने वाला है.
मीन्स कौन दिखने वाला, आई मीन हु विल राइट द यूजर स्टोरीज, फर्स्ट क्वेश्चन. So in your project, your BA is going to write the user stories. Okay. See, I mean, कैसे होता है exactly? User story can be written by anyone. Project manager लिख सकता है, team lead लिख सकता है, and even tester लिख सकता है, developer लिख सकता है, and BA लिख सकता है. But in your project, most of the user stories will be written by the BA, that is business analyst. Okay. So as a customer, okay, I want to create login credentials so I can securely access my self-service online account. User story बोले तो क्या minimum ये क्या है उसका? User story means detailed description of It is a detailed description of what? task. Requirement, not task. Task. No, requirement. कस्टमर रिक्वायरमेंट डिटेल, वो थोड़ा डिटेल में रहता है. अभी देखो कस्टमर अभी रिक्वायरमेंट बोला ना, अरे अगर किसी को पता है क्या ये कैसे फिक्स करते हैं, अगर मैं स्पेस बार किया तो नेक्स्ट डायरेक्टली कर्सर का फंक्शनलिटी फिक्स कर, ये कर रहा है. आई मीन रिक्वायरमेंट, तो अगर कोई किसी को पता रहा है तो फिर मेरे को बता दो. मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. एक टैब अटेंड डीजी पेन अटेंड करता, आई मीन अटैच करता हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे. रिक्वायरमेंट बोले तो कहता है कि क्या एक्सपेक्टेशन क्या है. ओके, रिक्वायरमेंट फॉर लॉगिन पेज. ओके, ये देखो रिक्वायरमेंट कैसे रहता है कि आई वांट टू डेवलप अ व्हाट लॉगिन पेज. उसके लिए रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा, तो इट्स जस्ट लाइक आई वांट टू डेवलप a requirement having username and password as a fields and clicking on the register or login page. Okay, ऐसा रहता है तो फिर इसको रिक्वायरमेंट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. ओके, बट एज ए सिंगल लॉगिन पेज देखते हैं. रुको, इधर कहीं पे लिखा है क्या, देखते हैं. ओके, रिक्वायरमेंट कैसे रहना चाहिए वो दिखाया इन लोगों ने. रिक्वायरमेंट कैन बी एनीथिंग, लाइक वो लिखे रहते हैं. वन इज इन द टेक्स्ट मोड, अंदर वन इज ए ग्राफ, ऐसे डेटा फ्लो डायग्राम में रहता है, रह सकता है. और नहीं तो आपको ऐसे फ्लो डायग्राम में रह सकता है. ओके, और ऐसे रह सकता है कंडीशनल. ओके, फ्लो चार्ट बोलते थे ना आप लोग, फर्स्ट ईयर में सुना होगा आप कहीं पे भी. ओके, यहाँ पे है ना ऐसे, नहीं तो ऐसे भी रह सकता है. दैट डिपेंड्स कि मीन्स यूजर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, दैट विल बी डिफाइंड. सो अकॉर्डिंगली अगर हमारा हम देखे थे HLD LLD करके, राइट. सो वहाँ पे हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन कैसे रहता था, लाइक UML डायग्राम रह सकता है, फ्लो चार्ट रह सकता है, राइट. जस्ट ए मिनट, रिक्वायरमेंट मिला तो बस अभी. फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेगा, कैसे रहेगा. ओके, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया. अरे ओके, ये तो फंक्शन द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स. ओके ओके ओके, लॉगिन का नहीं मिल रहा है.
SRS, लेट्स चेक कैसे मिलेगा इधर। ओके, ये रिक्वायरमेंट पेज है हमारा। ओके, तो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये बाद में देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट कैसे रहता है वो आप देख सकते हैं इधर। ओके, रिक्वायरमेंट लॉगिन एंड लॉग आउट पेज के लिए रिक्वायरमेंट वन कैसे है। फॉर वन यूजर द लॉगिन स्टेट कैन बी आइदर लॉग्ड इन और नॉट लॉग्ड इन। ओके, मीन्स अभी मैं अगर फेसबुक का ओपन किया इधर, ओके, फेसबुक ऐसे इधर लॉगिन, लॉगिन रहेगा, नहीं तो लॉगिन नहीं रहेगा, इधर लॉगिन नहीं है। ओके, जस्ट यहाँ पे क्या है, आपका यूज़र नेम दे सकते हो, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, और इधर आपका पासवर्ड दे सकते हो, राइट। ऐसे रहेगा। दीज आर द फील्ड्स मेरे को अभी एक्सपेक्टेड है। कस्टमर क्या बोलते हैं, मेरे को लॉगिन पेज चाहिए। अभी आप कोई भी कॉलेज का वेबसाइट मीन विजिट किया, उसको लॉगिन पेज नहीं रहता है, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा टाइप का एप्लीकेशन चाहिए। ओके, दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस। सो मेरे लॉगिन एप्लीकेशन, आई मीन एप्लीकेशन के लॉगिन चाहिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक हुआ, अमेजन हुआ। अमेजन देखो लॉगिन, अगर आप इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग यू मस्ट लॉगिन, राइट, उसका अकाउंट रहता है। फेसबुक अगर तुम्हारा आपको देखना है तो पेजेस तो लॉगिन करो, राइट। फॉर इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इस सबको लॉगिन नेसेसरी है। देर आर सम एप्लीकेशंस वेयर ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है, तो उसको लॉगिन करना देता है। और फ्लिपकार्ट अभी ऐसे ही देखना चाहते हैं तो जस्ट वांट टू ब्राउज, देन यू कैन ब्राउज इट। इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग देन आपका अकाउंट के थ्रू जाके परचेज करना पड़ेगा। ओके, देर आर मेनी एप्लीकेशंस वेयर लॉगिन पेज इज कंपलसरी। ओके, रिक्वायरमेंट कैसे रहता है देखो, सिनारियो, यूजर लॉगिन प्री कंडीशन क्या है, द यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, इधर यूजर लॉग्ड इन नहीं है। ओके, इसका रिक्वायरमेंट कैसे चाहिए, अभी द यूजर एक्सेस द सिस्टम, द यूजर आस्क टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन ए लॉगिन पेज, द यूजर प्रोवाइड्स अ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। ये हमारा भी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, द यूजर इज लॉग्ड इन एंड फंक्शनलिटी पेज इज शोन। ये अभी रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यूजर स्टोरी में कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये भी सेम है ऑलमोस्ट। ओके, इसमें पूरा थोड़ा डिटेल रहता है। यूजर स्टोरी में एग्जैक्टली क्या रहता है, क्या वो बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखो। यूजर स्टोरी इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट प्लस acceptance criteria. Okay, this is acceptance criteria, and we have some designs, username, password, re-enter password, ये डिजाइन है इसका। ओके, और ये देखो पिक्चर डाला है इन लोगों ने, राइट। ये सभी स्क्रीनशॉट्स है। ऐसे ही मेरे को चाहिए करके वो लोगों ने क्या डाला है, स्क्रीनशॉट डाला है। मेरे को मेरा डेवलपमेंट ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए ये लोग डिजाइन भी लिखा है उधर। ओके, इट कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्लस आपका डिजाइंस रहेगा और स्क्रीनशॉट्स रहेगा बस। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड स्क्रीनशॉट्स एंड डिजाइंस। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। ओके, सो अभी हम एक यूजर स्टोरी देख लेते हैं। यूजर स्टोरी एक्चुअली लिखते कैसे हैं। यूजर स्टोरी में मेन पार्ट ये है कि हु इज गोइंग टू लॉग इन एज ए कस्टमर। हम हमेशा हम कस्टमर को और एंड यूजर को हम मेंशन करते हैं इधर। ओके, एज ए यूजर आई वांट टू क्रिएट ए लॉग इन क्रेडेंशियल्स, मीन्स आई वांट टू क्रिएट ए लॉग इन क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे ये लॉग इन क्रेडेंशियल रहेगा, इधर यूजर में रहेगा, पासवर्ड रहेगा। ओके, लॉग इन क्रेडेंशियल, so that I can securely access my self-service online account. Means as a customer, as a user, I want to do this functionality for this purpose. यूजर स्टोरी लिखते कैसे हैं, यूजर स्टोरी फॉर्मेट करके डाला ना आपने, आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। कैसे, what is user story? User stories are a short simple description of a feature told from perspective of the person. ओके, मीन्स एक्चुअली पर्सन के हिसाब से हमको बताया रहता है। ओके, एक मिनट, अभी आपको दिखेगा। ओके, एज ए
person, description of user, user कौन रहेगा. Okay, I want to do this functionality so that I can do for this purpose, or so that I will benefit of this one. For example, as a customer, I want to create a login credential for this purpose so that I can access my ऑनलाइन सर्विस सिक्योरली. समझ में आ रहा है यूजर स्टोरी कैसा रहता है, राइट. बाद में रहता है कि गिवन, व्हेन, देन मींस एक्सेप्ट कब करना चाहिए. ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज अ मस्ट टू राइट अ टेस्ट केसेस. ओके, टेस्ट केस के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा. अभी देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कैसे रहेगा. इनपुट डेटा फील्ड्स टू एंटर. अभी इनपुट डेटा फील्ड टू एंटर बोले तो इनपुट डेटा फील्ड्स कौन कौन सा रहना चाहिए. एक रहना चाहिए यूजर नेम फील्ड रहना चाहिए, एक पासवर्ड के लिए फील्ड रहना चाहिए, री एंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर. ओके, ये 5 फील्ड रहना चाहिए मेरे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए. ओके, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है अभी ये. ओके, यहाँ पे ये देखो अभी यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, री एंटर पासवर्ड चाहिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए और सिक्योरिटी आंसर चाहिए. लेकिन ये कैसे दिखता है, ये देखो यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, री एंटर पासवर्ड चाहिए, सिक्योरिटी आंसर ड्रॉप डाउन रहेगा. ओके, सो ये डिज़ाइन दिया उन लोगों ने, ऐसे ही चाहिए मेरे को. अभी यूज़र नेम क्या चाहिए आपको, राइट. यूज़र नेम कैसे चाहिए. यूज़र नेम 30 ईमेल आईडी एक्सेप्ट करना चाहिए, या सिर्फ प्रशांत करके एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. और पासवर्ड कैसे चाहिए, मीन्स कोई भी दिया तो टेस्ट 1 2 3 दिया तो चलेगा, या एक अपर केस रहना चाहिए, लोअर केस लेटर रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए. कुछ आप लॉगिन किए होंगे कहीं पे, तो उसका कहाँ पे कैसे रहता है कि ऐसे ही पासवर्ड रहना चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्पज. ओके, आप देखे होंगे. ओके, दोज आर ऑल. क्या हुआ, सर वो स्क्रीन स्क्रीन हाफ इधर हाफ हाफ ही दिख रहा दिख है. रही है बस, इस हाँ, साइड का नहीं दिख नहीं रहा. सर, क्या हुआ. ये आ रहे दिख रहा है क्या सबको, बाकी को? हाँ वो जूम हुआ होगा आपके एंड से. अभी बराबर दिख रहा है ना. सर हाँ, यूजर एंड पासवर्ड क्रिएशन और आगे के 2 ये तो मेरा स्क्रीन ही है. मैं लाइक नहीं सर, बाकी को सब अच्छा दिख रहा है. ये देखो, ये छोटा हो जाएगा फिर. आपके एंड से वो जूम हो गया होगा. ये अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है. सर नहीं मैं अब स्क्रीनशॉट भेजती हूँ आपको, पता चले. कैसे हो रहा फिर. सर उसका शायद नेट को प्रॉब्लम होगा, बाकी लोगों को दिख रहा है शायद. ओके, तो वापस रिकनेक्ट करो रश्मि. हाँ ठीक है सर. ओके. ओके. ओके, सो ये कैसे है, लाइक यूजर नेम कैसे रहना चाहिए, हर एक फील्ड कैसे रहना चाहिए, सो दैट ये ऐसे रहा ना, हम लोगों को टेस्टर को कैसे हो जाता है, टेस्ट केस लिखने में इजी हो जाता है. ओके, टेस्ट केस कैसे लिखते हो आगे देखते हैं, लेकिन अभी यूजर नेम में क्या क्या रहता है पूछ सकते हैं कि हाउ व्हाट यूजर स्टोरीज कंसिस्ट ऑफ. यूजर स्टोरी कंसिस्ट ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन. उसको कैसे लिखते हैं आप देखें इधर. तो एज ए कस्टमर आई वांट टू डू दिस फंक्शनलिटी फॉर दिस पर्पस. ओके, यहाँ पे देखो एज ए यूजर आई वांट टू डू दिस फंक्शनैलिटी फॉर दिस पर्पस बिकॉज दिस थिंग्स. ओके, याद रखो हमेशा. ये लिंक आपको साथ शेयर करूंगा, आप देख लो एक बार बाद में जाके कैसे कैसे रहता है करके, आपको पता चलेगा. ओके. अरे रश्मि, तुम ऐसे पकड़ो ना, क्या बोलते हो इसको, टिल्ट करके वो पकड़ो मोबाइल, है क्या. रश्मि, मोबाइल ऐसे पकड़ो ना. क्या बोलते हो उसको, हॉरिजॉन्टली पकड़ो मोबाइल. हाँ ठीक है सर. अभी हो दिख गया. रहा है, हाँ हो गया ना. हाँ दिख रहा है सर. हाँ हो गया. हाँ. ओके.
सो यूजर नेम कैसे रहना चाहिए, टू बी डिसाइडेड, टीबीडी बोले तो टू बी डिसाइडेड फॉर स्पेसिफिकेशन, अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कैसे रहना चाहिए। ओके, वो यूजर नेम ईमेल आईडी रहना चाहिए। अभी देखो इधर आपका यूजर आईडी कैसे है, इधर ईमेल एड्रेस चाहिए और फोन नंबर चाहिए। ओके, आपका लॉगिन पेज में कैसे चाहिए वो डिसाइड कर दो। ओके, पासवर्ड कैसे रहना चाहिए वो डिफाइन किया है, एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स रहना चाहिए, उसमें एक वन नंबर रहना चाहिए, एक अपर केस लेटर चाहिए, एक लोअर केस लेटर चाहिए और वन स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चंस में ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या चाहिए वो टू बी डिसाइडेड है अभी तक। ओके, लेकिन आंसर उसके लिए चाहिए एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए। और भी डाल दिया उन लोगों ने, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड डेटा फील्ड्स, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, मीन्स ऑल आर मैंडेटरी फील्ड्स। ओके, ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। ओके, अलॉन्ग विथ यहाँ पे डिज़ाइन रहता है कि कैसे एग्जैक्टली दिखना चाहिए। अगर मैं डेवलपमेंट किया तो मेरा ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही फील्ड्स रहना चाहिए और ये सभी स्पेसिफिकेशन मीट होना चाहिए, तब जाके हमारा चेकिंग अच्छे तरह से होता है और डेवलपर को भी पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या क्या उसमें रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। ओके, सो यू गाइस जस्ट गो थ्रू इट कि आपको पता चलेगा यूजर स्टोरी कैसे दिखता है और कैसे लिखते हैं, कि नॉट नेसेसरी इतना डिटेल हमेशा रहता है, बट थिंग इज डिपेंड्स ऑन योर बीए और डिपेंड्स ऑन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, यू बीइंग ए टेस्टर, आप लोग क्या करते हैं, आप टेस्टर हो क्या पूरा डिटेल पढ़ते हैं और इसके हिसाब से आप लोग टेस्ट केस लिखते हो। ओके, एक दिस यूजिंग दिस आप लोग टेस्ट केस कैसे लिखते हो वो भी उसके लिए भी एक वीडियो बनाया मैंने, वो बाद में देख सकते हैं जब आपका ये टेस्ट केस लिखते कैसे यूजर स्टोरी देख के। ओके, तब देख सकते हैं आप लोग। फॉर टाइम बिंग कैसे यूजर स्टोरी रहता है ये पेज देख लो बस आप। ओके, so the next part comes here is like ओके, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ओके, अभी सेकंड पार्ट आता है, एनवायरनमेंट रहता है। एनवायरनमेंट बोले तो कैसे कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट बोल सकते हैं आप लोग। ओके, सो अभी देखो आप लोग इधर देख रहे होंगे ये सभी www ये है आपका .com है और .co.in है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट किया, ये www से स्टार्ट होता है हमेशा, मीन्स दीज आर ऑल लाइव लाइव रहता है, मीन प्रोडक्शन रहता है, मीन्स ये सबको दिखता है लाइव में है। लेकिन जब इसका टेस्टिंग हो रहा था, डब्ल्यू में अभी आया नहीं था, इसका कुछ टेस्टिंग फेजेस होता है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। ओके, एनवायरनमेंट बोले तो आपका ये बारिश वाला वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो एनवायरनमेंट बोले तो दैट इज अ प्लेस वेयर टेस्टिंग विल टेकन प्लेस, और डेवलपर का कुछ प्लेस रहता है वहाँ पे डेवलपर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टर का एक एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे टेस्टर्स विल डू द टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे वो कैसे दिखता है आपको ये बता रहा हूँ। तो डी यहाँ पे 3 टाइप का ये रहता है, क्या एनवायरनमेंट रहता है। वन इज कॉल्ड DIT। ओके, मैं आपको एक ओके, सो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट रहता है, मीन्स DIT, याद रखो, SIT एंड एक आता है UAT, और डायरेक्टली प्रॉड कर सकते हैं, और इसके पहले एक UAT आता है ये। ओके, दीज आर ऑल क्या है, एनवायरनमेंट्स। ओके, इसको आल्सो ये बोलते हैं कि डेव एनवायरनमेंट एंड ए QA एनवायरनमेंट और ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रॉड बोले तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ओके, सो DIT यहाँ पे डेवलपर विल डू द टेस्टिंग। ओके, जब भी आपको टेस्टिंग करना रहता है तो पहले डेवलपर जब बिल्ड करता है तो फिर हमेशा डेवलपर क्या करता है, पहले उसका खुद टेस्टिंग करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते हैं, हैप्पी पाथ लाइक, हाँ यूजर नेम लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए बस, यूजर नेम ले रहा है चलो, ओके, पासवर्ड ले रहा है, ओके, क्लिक ऑन लॉगिन, लॉगिन हो रहा है बस। ओके, अगर हो रहा है तो फिर SIT को ये लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड बोले तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में जो भी इधर काम हो रहा था ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, कैसे, बिल्ड दे के। बिल्ड कैसे देते हैं, बिल्ड बोले तो क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है।
ओके, बिल्ड मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, मीन्स जब भी आप रन करते हैं प्रोग्राम तो आपको एक स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई कॉलेज में इसमें किए होंगे, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो कुछ आपका इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए आ जाता है, राइट। अभी मैं इसका रन कर दे तो फिर आपको क्या दिखेगा, यूजर एंड पासवर्ड दिखेगा। ऐसे ही एक आपको डीआईटी में जब भी बिल्ड देता है तो एक डेवलपर उसका खुद का एनवायरनमेंट में चेक करेगा, उसको बिल्ड दे तो फिर वो एसआईटी एनवायरनमेंट में आके गिर जाएगा। तो तब टेस्टर्स विल डू द टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टर्स रहेंगे हमेशा, टेस्टर, और यहाँ पे डेवलपर्स। ओके, डेवलपर्स विल डू द टेस्टिंग हियर टेस्टर्स विल डू द टेस्टिंग। यहाँ पे मीन्स एंड यूजर्स, और यू कैन से क्लाइंट्स। क्लाइंट्स टेस्टिंग करेंगे इधर। क्लाइंट टेस्टिंग करने से पहले ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरा टेस्टिंग किया रहता है, डेवलपर भी टेस्ट किया रहता है, टेस्टर भी टेस्ट किया रहता है, बाद में डायरेक्टली उसको ये कहाँ पे जाता है, प्रोडक्शन में चले जाता है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली वो लोग यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशंस। ओके, सो टेस्टर्स के अभी ये एनवायरनमेंट दिखता कैसे है? ओके, ये एनवायरनमेंट कैसे दिखता है कि सिर्फ इसका उसका भी एक यूआरएल ही रहता है। ओके, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। ओके, वो लाइव नहीं है। ओके, लाइव नहीं बोले तो डब्ल्यू से नहीं स्टार्ट होता है। तो एक डे ऑफ सेट बंदा क्या किया रहता है कि आपको एक एनवायरनमेंट रेडी करता है। इट लुक्स लाइक दिस, HTTP SB। अगर मैं SBI का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो एक करके दे सकता है, sbi.dev.login.html फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे भी रहता है करके जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहता करके। ये कैसे होता है, ऐसे भी रह सकता है, मीन्स सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए आना चाहिए बस, ये कौन सा एनवायरनमेंट है करके। ओके, SBI.D1 बोले तो, डी बोले तो उधर समझो कि अब डेवलपमेंट टीम करेगा। कोई तो एक ये रहेगा लाइक रिकॉग्नाइजेबल एक यूआरएल रहेगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा एनवायरनमेंट है, क्यूए एनवायरनमेंट है या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आपका देखो इधर SBI.QA, इधर डेव था और उधर एक QA लगा है, राइट। हियर टेस्टर्स विल डू द टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे आता है कि यूएटी के लिए आता है यूजर नेम, लॉगिन, पासवर्ड। ओके, ऐसे कुछ यूआरएल रहता है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आप लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए एक डमी यूजर नेम ये रहेगा, यूआरएल रहेगा। ओके, वो यूआरएल में आपका जो भी डेवलप किया रहता है डेवलपर्स, वो आपका पूरा ये दिखेगा आपको, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन पेज पूरा दिखेगा। वहाँ पे आप लोग टेस्टिंग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे वो लोग कैसे टेस्ट किया रहता है, डेवलपर्स सिर्फ ईमेल एड्रेस डाल दिया रहता है और पासवर्ड डाला रहता है, क्लिक ऑन लॉगिन पेज। आप लोग डाल सकते हैं कि इधर नंबर भी डाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टेस्टर्स हमेशा नेगेटिव भी टेस्टिंग करते हैं और पॉजिटिव भी टेस्टिंग करते हैं। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं लोग। ओके, यहाँ पे जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा रहता है यहाँ पे नंबर भी डाल के देखो, नंबर भी ले रहा है क्या, और फोन नंबर डाल के देखो ले रहा है क्या, राइट। अगर फोन नंबर सिर्फ फोन नंबर रहता है तो आप ईमेल एड्रेस डाल के देखो, मींस नेगेटिव टेस्टिंग बोले तो इनवैलिड डेटा डाल के आप चेक करने वाले हो। ओके, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पे हमेशा ये याद रखो कि DIT और डेव एनवायरनमेंट में डेवलपर टेस्टिंग करते हैं और टेस्टर QA एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते हैं, और SIT मींस DIT बोले तो डेवलपमेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, डेवलपमेंट बोले तो डेवलपमेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेव एनवायरनमेंट। SIT बोले तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दैट इज आल्सो QA called UA environment. UAT testing means user acceptance testing, that is also called UAT environment. ओके, यहाँ पे क्लाइंट टेस्टिंग करेगा। ओके, सो आप लोग कहाँ पे इन्वॉल्व थे, मीन्स आई हैव इन्वॉल्व इन टेस्टिंग द एप्लीकेशन इन ओनली QA environment. Have you involved in UAT? No. Have you involved in production? No. Have you involved in DIT? ये तो पूछेगा भी नहीं है। ओके, सो अगर आप क्लाइंट साइड से हैं, बैंकिंग में जा रहे हो तो फिर आपको UAT में टेस्टिंग करना पड़ेगा। सिमिलर सेम ही रहेगा यहाँ, लेकिन वो यहाँ पे पास होके आया रहेगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन आपको यही बोलना है कि हैव यू इन्वॉल्वड इन UAT टेस्टिंग? नो, हैव इन्वॉल्वड इन QA टेस्टिंग। मीन्स QA एनवायरनमेंट में मेरा टेस्टिंग करता था और मैं QA एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करता था।
ओके, ये याद रखो हमेशा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट्स। ओके, याद रखो, इसको SIT भी बोलते हैं और QA भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बिल्ड। बिल्ड कौन देता है? बिल्ड देता है डेवलपर्स। बिल्ड देता है डेवलपर्स। कौन सा टूल यूज करते हैं वो लोग? जेनकिन इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल फॉर बिल्डिंग द और गिविंग द बिल्ड। ओके, कुछ नहीं रहता है, जो वो लोगों ने जो ये लिखे रहते हैं, कोड लिखे रहता है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट कर देगा बस। ओके, वो कन्वर्ट करने के बाद वो ये एनवायरनमेंट में आके मर्ज हो जाएगा बस। ओके, वो लोग पहले लोकल सिस्टम में चेकिंग करते हैं और डेव एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। वो खुद टेस्टिंग करते हैं डेवलपर्स। एक बार वर्क हो रहा है उसके हिसाब से, तो फिर वो लोग हमको टेस्ट करने के लिए देते हैं, वो उसको बोलते हैं SIT। दिस इज अ प्लेस वेयर टेस्टर विल डू द टेस्टिंग। ओके, वंस यहाँ से सभी पास हो गए तो फिर हम देते हैं UAT में। UAT में क्लाइंट लोग टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे टेस्ट हो गया तो वो प्रोडक्शन में चले जाएगा, मींस एंड यूजर विल स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन इन रियल टाइम। गॉट इट? यहाँ पे कुछ डाउट है? एनी डाउट इन दिस? सही बिल्ड का समझ में नहीं आया। बिल्ड बोले तो याद रखो कि इट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी ये कैसे दिख रहा है आपको? मींस इसके लिए पीछे इसका पीछे कोड लिखा है उन लोगों ने, राइट? ये एप्लीकेशन फेसबुक है, इसके पीछे डेवलपर्स क्या किया, कुछ कोडिंग लिखे हैं इन लोगों ने, राइट? ये देखो पूरा कोड दिखता है आपको इधर, राइट? तब जाके ये आपको दिख रहा है, राइट? तो बिल्ड देने के बाद आपको ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्ड देने के बाद आपका एनवायरनमेंट का एक URL रहेगा, यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझो कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, लॉगिन पेज और क्रिएट न्यू अकाउंट, इतना ही किया है। ओके, कहाँ पे आपका, ओके समझो, ओके पहले डेव एनवायरनमेंट में लोग क्या करते हैं, तो एक लॉगिन पेज बना लेते हैं लोग। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, लॉगिन, राइट? और यहाँ पे पूरा टेस्टिंग कर लेते हैं। कौन करते हैं इधर डेव एनवायरनमेंट में? डेवलपर। तो यहाँ पे आता है QA एनवायरनमेंट। ओके, जब इधर टेस्टिंग हो जाएगा तो QA एनवायरनमेंट में ये लोग बिल्ड देते हैं। QA एनवायरनमेंट में इधर डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे भी एक ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक लिंक URL रहता है। फॉर एग्जांपल httpa sbi.qa login.html, राइट? यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, टेम्पररी एनवायरनमेंट रहता है लोग, ये वाला। ओके, यहाँ पे भी एक रह सकता है http sbi.dev.login.html। ओके, यहाँ पे ऐसे ही आपका UAT का रहेगा और इधर prod का रहेगा। prod का कैसे रहेगा, ये पूरा लाइव रहेगा तो फिर WWS में आ जाता है। ओके, यहाँ पे जब भी ये लोग टेस्टिंग होता है तो यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, बिल्ड देते हैं। बिल्ड देते बोले तो एक बिल्ड बोले तो याद रखो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, बिल्ड देने के बाद जो भी इधर दिखता था यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन। अभी टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ओके, टेस्टर क्या करेगा, अभी टेस्ट करेगा, लेकिन इधर फॉरवर्ड पासवर्ड भूल गया है। डेवलपर ने क्या किया, फॉरवर्ड पासवर्ड भूल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बग राइज कर देते हैं। ओके, बग लाइफ साइकिल अलग है, वो देख लेते हैं आगे।
बग रेस करते तो फिर वापस वो क्या करेगा, कोड लिखेगा किसके लिए, फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए। ओके, यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए क्या करेगा, वो कोड लिखेगा। जब ये वापस बिल्ड दे देगा, वापस बिल्ड दे देगा वो, तो जेनकिन टूल है यूज करके वो बिल्ड दे देगा। तो फिर इधर पहले इधर नहीं दिख रहा था, तो वापस इधर ये लिंक आपने वापस रिफ्रेश किया। ओके, रिफ्रेश किया तो इधर आपका लॉगिन सॉरी फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्ड इज जस्ट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये याद रखो आप। ओके, जब भी इधर मेरा पूरा टेस्टिंग हो जाएगा, मैं डेवलपर इसको बोल दूंगा, किसको, डेवऑप्स टीम को बोल दूंगा कि यूएटी में तुम डाल सकते हो इसको। ये पूरा उठा के कोड उठा के यूएटी में डाल देगा वो। तो द सेम थिंग विल बी विजिबल फ्रॉम हियर टू हियर। इधर भी सेम दिखेगा। कैसे, इधर यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड एंड फॉरवर्ड पासवर्ड एंड लॉगिन। क्योंकि ये तो फॉरवर्ड पासवर्ड था, इधर ही फिक्स होगा, इधर दिख रहा था इधर, राइट, यहाँ पे दिख रहा था। पहले मैं जब टेस्टिंग कर रहा था फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं था, तो मैं डेवलपर को बता दिया, डेवलपर फिक्स किया और वापस मेरे को बिल्ड दे दिया। तो इधर टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद इधर बिल्ड किया, तो फिर फॉरवर्ड पासवर्ड इधर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो बिल्ड इज जस्ट अ व्हाट, एग्जीक्यूटेबल फाइल। कंस्ट्रक्ट समथिंग पुटिंग पार्ट और मटेरियल टुगेदर मीन्स कुछ जो डेवलप करो और उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दो। बिल्ड इन सॉफ्टवेयर। Okay, software development build is a process of converting source code file to the standalone software artifacts. Means ये जो बिल्ड देने के बाद ये जो कोड लिखे रहता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट होके आपको ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बिल्ड। ओके, व्हाट इज बिल्ड? बिल्ड इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो कैसे होता है, क्या होता है, कोई पूछेगा नहीं। दिस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इतना सारा डिटेल बताया बस, और कुछ नहीं। बट ये याद रखो कि where you involved, have you involved in QA testing or UAT testing? You have involved in QA testing, okay, or SIT testing, okay.